Good morning, my dear students. Let's continue with exercise 11.1. Question number 6 we have to start with. I hope you all have completed question number 1 to 5. Now see the question number 6. A wire is in the shape of a rectangle. Its length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. The shape of wire is given to you that it's in the form of rectangle and length of that rectangle is 40 centimeter and breadth is 22. If the same wire is rebent in the shape of a square, what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. You are told that a wire is in the shape of rectangle whose length is 130 centimeter and length is 40 centimeter and breadth is 22 centimeter. If the same wire is rebent in the shape of a square, अगर इसी वायर को पहले तो ये स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में इसी वायर को स्क्वायर शेप में बना दिया जाए, then what will be the measure of each side? Also find which shape encloses more area. He is saying कि अगर इसका स्क्वायर बनाया जाए तो बताओ कि उस स्क्वायर की साइज क्या होगी. अब वायर है, लेंथ ब्रेड्थ वायर की पता है, हम पहले इसका पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है, ताकि हमें टोटल लेंथ ऑफ वायर पता चल सके. ठीक है, अभी वायर से स्क्वायर और रेक्टेंगल बना दिया और रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड्थ हमें पता है, लेकिन हमें टोटल लेंथ ऑफ वायर नहीं पता. टोटल लेंथ ऑफ वायर हमें कैसे पता चलेगी? अगर हम पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री ऑफ एनी शेप. ठीक है, अगर हम इसकी पूरी बाउंड्री निकाल ले, पेरीमीटर निकाल ले, तो वी विल कम टू नो अबाउट द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, राइट? सो फाइंड आउट. पहले लिखो टोटल लेंथ ऑफ वायर is equals to perimeter of rectangle. Clear? ऊपर लिख लेना लेंथ ऑफ वायर इज 40, breadth is 22 centimeter. ये each is given. Now, what is the perimeter? 2 multiply L plus B. 2 multiply 40 plus 22. 2 multiply 40 plus 22 is कितना होगा ये? 62. 124 सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमारी टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या आ गई? 124 सेंटीमीटर हो गई. अब जो लेंथ ऑफ वायर थी, टोटल लेंथ ऑफ वायर, उसी से हमने स्क्वायर बना दिया. ठीक है, 124 सेंटीमीटर की वायर है ना, तो उसी से स्क्वायर बना दिया. मींस पेरीमीटर क्या होगा उस स्क्वायर का? 124, राइट? पेरीमीटर तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ उसको मोल्ड ही तो करा है. पहले रेक्टेंगल की शेप में सेम कर दिया और रेक्टेंगल में मोल्ड किया और फिर उसको मोल्ड करके उसका स्क्वायर बना दिया. ठीक है ना? जैसे सपोज वी आर हैविंग दिस वायर. इस वायर ये लेंथ हमारे पास है 124 सेंटीमीटर. इतने ही का पहले हमने क्या किया? रेक्टेंगल बना दिया और इतनी ही वायर का हमने उसको स्क्वायर शेप में बना दिया. पेरीमीटर तो सेम रहेगा ना, तो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विल बी दिस ओनली. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equal to perimeter of rectangle. That is 124 centimeter. अब फॉर्मूला लगाओ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का. 4 multiply side equals to 124 centimeter. Now find the side of the square. 124 divided by 4. So side of square will be 4 3s are 12, 4 are 4. It's 31 centimeter. Right? अब क्या करना है? लास्ट क्वेश्चन उसने पूछा
में that which of the following shape is having more area, rectangle or this? Area of rectangle निकालो, length multiply breadth, 40 multiply 22, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एंड एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, ये इसके बाद करना है, साइड निकालने के बाद। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज योर 31 मल्टीप्लाई बाय 31, कर दो मल्टीप्लाई, 961 centimeter square. So which shape is having more area? Square. Last में line लिख देंगे that square is having more area. Next question, question number 7. Perimeter of rectangle is 130 centimeter. If the breadth of rectangle is 30, find its length. Also find the area of rectangle. You are given with perimeter of rectangle. सबसे पहले हम given things set कर लेते हैं. Perimeter of rectangle 130. Breadth also given. Breadth is your 30 centimeter. You have to find length. This you have to find. Now apply करो formula. Perimeter of rectangle 130 given ना, formula लगाओ, 2 multiply L plus B. 2 को इधर ले जाओ, पहले वैल्यू पुट कर दो, L breadth की वैल्यू है 30, शिफ्ट करो, 130 अपॉन 2 हो जाएगा, L plus 30 equals to 65, L equals to 65 minus 30, L equals to 35 centimeter, right? Now find the area also. Area में बोला है find करने के लिए, area of rectangle equals to L multiply B, 30 multiply 35 multiply by 30. 1050 centimeter square. Fine. Next question number 8. A door of length 2 meter in breadth 1 meter is fitted in a wall. The length of wall is 4.5 meter. Breadth of wall is this. Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is rupees 21 meter. What is given to you? Length breadth आपको door की given है और length breadth आपको wall की given है. ठीक है. What you have to find? You have to find the rate of whitewashing the wall at the rate of rupees 20 per meter square. आपने वॉल को वाइट वॉश करने का रेट निकालना है. अगर 1 स्क्वायर मीटर को वॉश करने में 20 रुपीज लग रहे हैं, तो टोटल जितना वॉल का एरिया है उस सारे को वॉश करने वाइट वॉश करने में कितना अमाउंट लगेगा, दैट यू हैव टू टेल. ठीक है. अब आप कहोगे उसमें डोर का क्या सीन रहेगा जब हमें सिर्फ वाइट वॉश का वॉल का निकालना है. तो अभी आपको गिवन क्या है, देखो इधर. सपोज दिस इज योर वॉल, ये वॉल है आपकी और ये यहाँ पर डोर है. ठीक है. लेंथ ब्रेड्थ आपको डोर की गिवन है और लेंथ ब्रेड्थ आपको वॉल की भी गिवन है, दोनों की गिवन है ना. तो अभी हमने तो सिर्फ एरिया व्हाइट वॉश वॉल का निकालना है. डोर को तो व्हाइट वॉश नहीं होता, डोर पे तो हम लोग पेंटिंग करते हैं, दूसरा पेंट होता है. तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल में से पहले एरिया ऑफ वॉल निकालेंगे, एरिया ऑफ डोर निकालेंगे. एरिया ऑफ वॉल में से डोर का एरिया जो है उसको माइनस कर देंगे.
ठीक है। फिर जो वॉल का एरिया रह जाएगा माइनस करा हुआ, फिर उसकी कॉस्ट निकाल लेंगे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। 1 स्क्वायर मीटर एरिया को 20 रुपीज लगेंगे, तो जितना एरिया आएगा उसको निकालने में कितने रुपए लगेंगे वो हमने बताना है। ठीक है, write down length of door 2 meter, breadth of wall 1 meter, area of wall क्या हो जाएगा 2 multiply 1 3 meter square, sorry 2 meter square। फाइन, अब लेंथ ऑफ वॉल लिखो 4.5 मीटर, breadth of wall 3.6 meter, find out the area 4.5 multiply 3.6, that is, find it out, (13.20 meter square. Now what you have to do? You have to subtract the area of wall minus area of door। क्या निकला हमारे पास? एरिया टू बी वाइट वॉश एरिया। ठीक है, देखो वाइट वॉशिंग एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। तो 13.20 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर, करो माइनस 13.20 माइनस 11.20 meter square. Now what you have to do? You have to find the cost of whitewashing. Cost of whitewashing 1 square meter equals to ₹20. Cost of whitewashing 11.2 meter square area is 20 multiply 11.20. जितना multiply करके आएगा that will be your answer. Okay. So thank you children. In the next video we will start with the next exercise.